So, what was the topic of discussion we were doing yesterday? What was the topic? The first Lord Canning. Okay, Lord Canning. Like we were doing Viceroys of yesterday, Viceroys yesterday, and we did Lord Canning, right? Yes, sir. हाँ, Lord Canning में पूरा हो गया था. Yes, sir. The last sentence that you taught us was Canning as Viceroy, and the last sentence is in 1861, Indian High Court Act was passed. Okay, so You said explain the Indian Council also as well. we will do Canning. Okay, once again, so that you generate that connectivity. Okay, so we were doing Viceroys of India. Okay, so the first Viceroy or the person who was the Governor General and he became the Viceroy was Lord Canning. Okay, Lord Canning. Now, if you see from 1856, ठीक है, from 1856 to 1858, ठीक है, 1856 से 1858 के बीच में लॉर्ड कैनिंग was Governor General. He was the Governor General. Okay. Now, अब ये आपको याद क्यों रखना है? Why you have to remember this? Because in 1858, Government of India Act was passed. Okay, 1858 Government of India Act was passed, and the post of Governor General was replaced into the post of Viceroy. Now, the major importance of this is Governor General used to report to, he was responsible to East India Company, but Viceroy was directly responsible to the power in England, or you can say the Queen and the King. Okay, so Canning, who was the last Governor General? So the question can be, who was the last Governor General? So last Governor General was Lord Canning, and he went on to become the first Viceroy also. So in 1858, he became the Viceroy, and from 1858 to 1862, he became the Viceroy of India. He was the first Viceroy of India. Okay, he was the Viceroy of India. Now, understand. Now, obviously, 1858 से 1856 से लेकर 58 के बीच में भी he must have done something. So when he was the Governor General, what he did, two important things that happened in India was, one, the revolt of 1857. So the question can be asked directly, the revolt of 1857 happened during which Governor General's duration? It was Lord Canning. Okay, and he established three universities, that is University of Bombay. This was the first university. Second was Madras. This was the second university. And third was Calcutta. So you should be absolutely clear with this, that 1856 to 1858, the Governor General was Lord Canning. 1858 Government of India Act passed. Governor General's post was replaced into the post of Viceroy. During the time of Viceroy, the persons were directly responsible to, like, answerable to the Queen and the King. Okay. 1858 Canning became the Viceroy. He was Viceroy till 1862. Now, during his tenure, what was the thing which were done? Now just understand कि क्या क्या हुआ. मैं आपको बस एक brief idea दे देता हूँ. First thing which was done was IPC, that is Indian Penal Code. As Viceroy उनके टाइम पे क्या हुआ, 1860 में Indian Penal Code codify हुआ. आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसको आप इंडियन पीनल कोड, जो आज भी कुछ टाइम पहले तक भी यूज होता था, इंडियन पीनल कोड वाज कोडिफाइड. नाउ 1861 में an act was passed, that is Indian Council Act. Okay, Indian Council Act of 1861. And there was another act which was passed, that is Indian High Court Act. That is also in 1861, Indian High Court Act. Okay, so if anybody asks you, like, Canning as Governor General, what did he did? The major thing was the revolt of 1857 happened when Canning was the Governor General. That is point number one. Point number two.
University of Bombay, Madras, and Calcutta was established when Canning was the Governor General. 1860, Indian Penal Code was made. 1861, Indian Council Act was made, and 1861, Indian High Court Act was made. Now, you are absolutely clear with this? Yes, sir. ठीक है, अब आपको मैंने ये एक्सप्लेन करना है इंडियन काउंसिल एक्ट क्या होता है, इंडियन हाई कोर्ट. फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट डाउन इंडियन काउंसिल एक्ट. As per Indian Council Act, portfolio system was introduced. Portfolio system was introduced. The Viceroy's portfolio system was introduced. The members of the Viceroy's Council was made in charge of one or more department of the government. These members were authorized to issue final order Hello, am I audible? Yes, sir. बीच में वॉइस कट हो गया था ना. जी सर. ठीक है, कोई. लास्ट क्या लिखवाया था, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? This member were authorized to issue final order. आज बस इतना ही मिस हुआ. राइट डाउन ऑर्डर on behalf of the council, on the matters of the concerned department. On behalf of the council, on the matters of concerned department. ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ ये है क्या, सिस्टम क्या है ये समझ लो. ठीक है, इट्स वेरी इजी. सिस्टम क्या है इसको समझने का मैं आई विल टेल यू इन 2 मिनट्स. देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है. Now, just before understanding portfolio system, what is portfolio system? बस अभी इतना समझ में आ गया. Indian Council Act, on the basis of Indian Council Act 1861, a system was created which is called as portfolio system. Are you clear with it? On the basis of Indian Council Act 1861, a system was created that is portfolio system. Clear with it? Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. No, sir. अब सुनो कि what exactly is portfolio system. This I will tell you. ठीक है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग पोर्टफोलियो सिस्टम हम इसको भूल जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ते हैं, तब आपको वो समझ में आ जाएगा. आपने आज मोदी जी का मिनिस्ट्री देखा है? हैव यू सीन द मिनिस्ट्री ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? देखा है? हाँ या ना? हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. ओके. देखो, अब इस मिनिस्ट्री में यू विल सी डिफेंस मिनिस्टर इज देयर. ठीक है, यू विल सी फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर. You will see external affairs minister is there. ये सब क्या है? ये सब इसको कहते हैं पोर्टफोलियो. अब डिफेंस मिनिस्ट्री का मेजर डिसीजन, हु विल टेक द मेजर डिसीजन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर?
Who will take the major decision of defense ministry? अरे कुछ बोलो यार, कोई। राजनाथ सिंह, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो मेजर डिसीजन है वो डिफेंस मिनिस्टर लेंगे, जो जो भी हमारे देश के रक्षा मंत्री है, ही विल टेक द मेजर डिसीजन। होम मिनिस्टर का मेजर डिसीजन कौन लेगा? हु इज द होम मिनिस्टर? होम मिनिस्ट्री का मेजर डिसीजन अमित शाह लेंगे। सो उज्जवल कह रहा है कि प्रेसिडेंट लेंगे। उज्जवल बहुत पिटेगा ये, ठीक है। सो जो भी होम मिनिस्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ अमित शाह इज द होम मिनिस्टर, ही विल टेक द मेजर डिसीजन ऑफ दैट मिनिस्ट्री, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का मेजर डिसीजन डिफेंस मिनिस्टर लेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेजर डिसीजन निर्मला सीतारमन लेंगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मेजर डिसीजन एस जयशंकर लेंगे। सो दिस इज पोर्टफोलियो। अपने अपने पोर्टफोलियो का या अपने अपने उसका डिसीजन वो पर्टिकुलर मिनिस्टर लेगा। अब आओ इंडियन काउंसिल एक्ट में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत एक वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक पोर्टफोलियो सिस्टम क्रिएट करा था। दैट पोर्टफोलियो सिस्टम मींस द एंटायर काउंसिल ऑफ वाइस रॉय विल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो पूरा काउंसिल होगा वाइस रॉय का, वाइस रॉय के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। हर डिपार्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा? वो पर्टिकुलर मेंबर लेगा जो उस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया। जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर काउंसिल। दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। समझ में आ गया? ऑब्वियसली फाइनली वाइस रॉयज अप्रूवल इज नीडेड, बट द की पर्सन विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्लियर? Clear or not? Sir, can you explain it one more, sir? Once more, sir. Okay, sure. See, बहुत सिंपल है पोर्टफोलियो सिस्टम। और मैं आप पोर्टफोलियो सिस्टम में बताता हूं। अब वाइस रॉय है, वाइस रॉय के काउंसिल में कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। वाइस रॉय के काउंसिल में कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। हर मेंबर को एक रोल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेंबर ए, ही विल बी द हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। Member B, he will be the head of education department. Member C, he will be the head of external affairs. Member D, he will be the head of foreign ministry. मतलब फाइनेंस कर दो, एक्सटर्नल अफेयर्स फाइनेंस कर दो। फाइनेंस, he will be the head of finance. ठीक है। मेंबर ई, ही विल बी द हेड ऑफ एजुकेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस। समझ में आ गया? अब जो ये हेड है उसका, उस डिपार्टमेंट का, नाउ आपने क्या कर दिया? पूरे काउंसिल को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एंड व्हेन यू डिवाइड इट, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। आपने पोर्टफोलियो एलोकेट कर दिया। अब जो ए बी सी डी ई, ये जब आपने ऐसा करके डिवाइड कर दिया है, इसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, वो लेगा मेजर डिसीजन। क्लियर? वो क्या लेगा? मेजर डिसीजन। क्लियर और नॉट? Yes, sir. बस दिस वाज डन एज पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1860। ठीक है? Yes, sir. सबको क्लियर है? अब फिर तुम लोग सब साइलेंट मोड पे चले गए, क्या हो जाता तुम्हें? ठीक है। एनीवेज, अब इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत अगर मैं आपको बोलता हूं द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज क्रिएटेड, इज इट राइट और रॉन्ग? इफ आई टेल यू Right, sir. पोर्टफोलियो, ओके, वेरी गुड। अब एक और पॉइंट लिखो एक और पॉइंट लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। So, sir, portfolio, ये क्या लिखा है समीर ने? So, sir, portfolio system was also introduced in 1860, or was it done after 1860? It was done after 1860, obviously. मतलब इससे पहले भी होता था, बट एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल 1860 के बाद आया था। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल। ठीक है, राइट डाउन इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट also empowered the viceroy
Indian Council Act also empowered the Viceroy to issue ordinance without the consent of Legislative Council during an emergency. This ordinance will be valid for 6 months. This ordinance will be valid for 6 months. देखो, इसको समझने से पहले आप पोर्टफोलियो सिस्टम, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट सिस्टम कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होता है, वो सिस्टम क्या होता है. आई होप एवरीवन इज क्लियर. Yes, sir. अब देखो, एक और पॉइंट बताता हूं, ठीक है. इंडियन काउंसिल एक्ट में वाइस रॉय को एक ऑर्डिनेंस पावर दिया गया, ठीक है. एक व्हाट वाज गिवन, एन ऑर्डिनेंस पावर वाज गिवन. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल डू वन अदर थिंग, सो उसको आप इससे रिलेट कर पाओगे. आज हमारे टाइम पे, अब ये भूल जाओ 2 मिनट के लिए, आज हमारे देश में व्हाट इज लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री? व्हाट इज लेजिस्लेचर? लॉ मेकिंग लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा, राज्यसभा, और यू कैन से लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे अभी इन्होंने बोला, ठीक है. एंड वी हैव प्रेसिडेंट, ठीक है. अब क्या होता है, एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं. यूजुअली लोकसभा और राज्यसभा जो लेजिस्लेचर है वो बताता है प्रेसिडेंट को कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, ठीक है. उसके लिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है. रेजोल्यूशन पास होता है कि देश की स्थिति खराब है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो. फिर वो राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है. राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा और प्रेसिडेंट फाइन करे हुए तो पूरे देश में इमरजेंसी लग जाएगी, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो गया, ऐसे करके अलग अलग टाइप की इमरजेंसीज होती है. तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे. 1974 में हमारे देश में, 1974-75 में हमारे देश में लगा था, 76 तक इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है. सो इमरजेंसी लग जाती है व्हेन द नेशन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो एज पर द रेजोल्यूशन पास इन लोकसभा, राज्यसभा, इमरजेंसी कैन बी इंप्लीमेंटेड. ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ. अब क्या होता है, अगर लोकसभा राज्यसभा सेक्शन में नहीं है, फॉर एग्जांपल लोकसभा राज्यसभा हॉलीडेज पे गए हुए, सेक्शन में नहीं है, तो ये जो काम है इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने का, प्रेसिडेंट डायरेक्टली लगा सकते हैं, डायरेक्टली इनके रिकमेंडेशन के बिना लगा सकते हैं, डायरेक्टली. ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है. और वो जो उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करना. प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट गिव्स एन ऑर्डर, and through that order emergency can be implemented in the country. That is ordinance giving power of president. प्रेसिडेंट बोल सकते हैं भाई ये लोग सेक्शन में नहीं है, सो बट देश की स्थिति खराब है, तो आई एम डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग द emergency. This is the power that lies with the Honorable President of India. And that emergency is valid for 6 months. ठीक है. और उसके बाद वो फिर दोबारा एक्सटेंड भी कर सकते हैं. वो आप इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ोगे कि भाई उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, वो पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हेन लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, इज नॉट इन सेक्शन, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पास एन ऑर्डिनेंस, कैन promulgate an ordinance. Through that ordinance 6 months emergency can be implemented in the country. Is it clear or wrong? Right or wrong? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, similarly, उस टाइम पे without the permission of legislature, the viceroy could pass an ordinance. वाइसरॉय, लेजिस्लेचर के परमिशन के बिना वाइसरॉय एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, और उस ऑर्डिनेंस के तहत देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है. एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और उस ऑर्डिनेंस के तहत देश में क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी. Viceroy can pass an ordinance without the permission of legislature, and that will also be valid for 6 months. समझ में आ गया कंसेप्ट?
sir. ठीक है, देखो वही मैंने वर्ड्स आपको लिखा है, अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान से ध्यान दो. इंडियन काउंसिल एक्ट एम्पावर्ड द वाइस रॉय. इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत वाइस रॉय को पावर मिला टू इश्यू ऑर्डिनेंस. एक ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं वाइस रॉय साहब विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या लेजिस्लेचर के कंसेंट के बिना एक ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, या इमरजेंसी लगाने के लिए, या इमरजेंसी के दौरान. द ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड फॉर 6 months. जो भी वो ऑर्डर देंगे वो इनका लेजिस्लेचर के बिना जो भी ऑर्डर देंगे वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा. आई होप थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, Yes, क्लियर. देखो अब हमने पहला गवर्नर पहला वाइस रॉय करा, दैट इज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, अब इफ आई आस्क यू, कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1856 to 1858, राइट और रॉन्ग? Right. Sir. Canning became the, you want to ask a question? किसी को क्वेश्चन पूछना? अभी आवाज आई थी. यस सर, एक कुछ ठीक है, नहीं पूछना. कैनिंग became the viceroy in 1858, right or wrong? Canning became Right, the sir, right, viceroy in, हाँ right, okay. Canning became the viceroy as per Government of India Act 1858, right or wrong? Yes, sir. Right, sir. Right, sir. During like after Government of India Act 1858 was passed, East India Company became more powerful in India. False. Wrong, sir. No, sir. Crown became more powerful. Very good. The crown, that is queen or the king, became more powerful. Okay. IPC was codified when Canning was the Governor General of India, right or wrong? Right, sir. Wrong. Viceroy. IPC was codified when Canning was the Viceroy in India, 1860. हो गया ना गलत? Indian Council Act created portfolio system in India, right or wrong? Right. Right, right, sir. Okay. Indian Council Act created, empowered the Viceroy with the ordinance making power, right or wrong? Correct, Right. sir. Canning was the first Viceroy and the last Governor General of India, right or wrong? Right. Right, right, sir. अभी किसी ने wrong बोला. किसने बोला था wrong? ईमानदारी से बोला. अभी किसी ने wrong बोला. Who was the person who said it wrong? अरे नहीं डांटूगा, बताओ भाई. Who said it wrong? देखो यार, बोल दो, मैं नहीं डांटूगा. We will discuss it. So it was me. What's your name? So Inche. एनजे डांट दो अब. I'm very with you. अच्छा देखो सुनो. कैनिंग was the last Governor General and the first Viceroy. सही तो है बेटा? क्या दिक्कत है उसमें? Sir, I only heard Viceroy. अच्छा बहुत बढ़िया. ठीक है, समझ में आ गया ना? बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है. इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है. ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए. देखो ठीक है, अब हम बात करते हैं एक उसके क्या बोलते हैं वाइसरॉय, और जिनका नाम है लॉर्ड लिटन. क्या नाम है उनका? क्या नाम है चिमला? क्या नाम है इनका? Lord Lipton. आजकल क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? Sir, I am sick. यू आर सिक. कुछ झूठ बोल लो मतलब. No, sir. I have a terrible cold and cough along with migraine. टेरिबल कोल्ड एंड कफ अलॉन्ग विद माइग्रेन. जिस देश में कोविड-19 ने पूरा देश बंद कर दिया, उसमें एक लड़की कोल्ड एंड कफ के लिए रो रही है. बताओ, छोटी बात तो करो मत चिमला. आई एक्सपेक्ट हाई स्टैंडर्ड डिसीज फ्रॉम यू. ठीक है, कम कुछ नहीं होना चाहिए. होना चाहिए तो सब हाईएस्ट में होना चाहिए. पेपर निकालना है तो आईएएस बनना है, उससे कम कुछ नहीं. बीमारी हो रही है तो हाई लेवल. समझ रहे हो? कोल्ड एंड कफ तुम जैसे को होगा मतलब क्या चिमला यार. एनीवेज, चिमला, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट लॉर्ड लिटन? जानते हो इनको? यू हैव एनी आइडिया? No, sir. वेरी गुड, गेट आइडिया. चलो, लॉर्ड लिटन ने, ये एक वाइस रॉय थे. मैं खाली इंपॉर्टेंट वाइस रॉयज पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको सारे वाइस रॉयज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है. ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1878 में
अब हम इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो देखेंगे। 1878 में एक एक्ट पास किया था। द एक्ट वॉज आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878 बाय लॉर्ड लिटन। ठीक है। अब इस एक्ट का एक बहुत सिंपल लॉजिक मान लो या फंडामेंटल्स मान लो। इस एक्ट में क्या कहा था? कॉमन पीपल कैन नॉट बेयर आर्म्स। क्या बोला था? कॉमन पीपल, कॉमन मैन ऑफ इंडिया, कॉमन पीपल कैन नॉट bear arms. So Lord Lytton in 1878 passed an act which was called as Arms Act. ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंडिया में एक परमिशन था कि कॉमन मैन भी आर्म्स रख सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश यूज टू डू लॉट ऑफ एट्रोसिटीज ऑन देम, मारते थे, पीटते थे। तो इंडिया में कॉमन मैन को आर्म्स रखने का परमिशन था। बट ये एक्ट आज के टाइम पे आप देखोगे तो यू विल सी, अरे ये तो बहुत अच्छा एक्ट है, कॉमन मैन के पास आर्म्स नहीं होना चाहिए। बट उस टाइम पे इंडियन लोगों के लिए आर्म्स इतना जरूरी था फॉर दैट रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट लॉर्ड लिटन वाज द पर्सन जिन्होंने ये एक्ट पास किया। उन्होंने बोला कि कॉमन मैन ऑफ इंडिया कैन नॉट बेयर द आर्म्स, ठीक है, विदाउट परमिट। समझ में आ गया व्हाट इज आर्म्स एक्ट? तो लोगों ने इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाया कि हमें मारते हो, हम बंदूक नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगला है वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट मैं लिखवा दूंगा अभी, 1 मिनट रुक जाओ। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, भैया ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट में पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा। व्हाट वाज दिस एक्ट अबाउट एंड व्हिच वाइसरॉय पास्ड दिस एक्ट? ठीक है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। ठीक है, ये एक्ट 1878 में पास हुआ था। ठीक है। अब दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस जिससे टू कर्ब फ्रीडम ऑफ प्रेस, टू कर्ब फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस में एक रोक लगा दिया, टू कर्ब फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है। अब इसमें क्या बोला? द रीजनल प्रेस, रीजनल मीडिया, रीजनल प्रेस कैन नॉट क्रिटिसाइज, रीजनल प्रेस कैन नॉट क्रिटिसाइज ब्रिटिश। ठीक है, द रीजनल प्रेस कैन नॉट क्रिटिसाइज ब्रिटिश। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज पास टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि रीजनल प्रेस, ठीक है, जो रीजनल मीडिया है वो कभी भी ब्रिटिश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जो करेगा उसका प्रेस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर? तो आपको एक बात मैं बता देता हूं, ये बोला जाता है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन जो वाइसरॉय थे 1876 से 1880 के बीच में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज करा जो कि इंडिया के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो इट इज सेड दैट इन द इंडियन हिस्ट्री लॉर्ड लिटन वाज द वाइसरॉय एंड ही डिड लॉट ऑफ atrocious things or disastrous things which created an havoc in the minds of the Indian population, or which resulted in a lot of reactionary policies of the Indian people. Like वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. So the first thing what he did was he passed Arms Act in 1878. That means no Indian person can bear arms without permit. And second, he passed Vernacular Press Act of 1878 to curb the freedom of press. That is, regional media powers cannot criticize British. If anybody does so, आपका मीडिया बंद। समझ में आ गया? Yes, sir. अभी इस पे और है, बाकी लोगों को समझ में आ गया? हरी, कैल्जन, ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सोनल, Yes, sir. ओके, राइट डाउन। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। विद इन 2 क्लासेस, मेरे हिसाब से 2 क्लासेस, आज के क्लास और कल के क्लास के लगभग एंड होते होते, यू विल बी एंटरिंग इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एंड आई हैव taught you modern history in an absolutely detailed manner. ठीक है, same I am doing with polity. मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं एंशिएंट और मिडाइवल अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज एंशिएंट एंड मिडाइवल इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट है, दैट आई कैन डू वेरी क्विकली ऑल्सो।
मैं वो इतना मैं सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट सबके पहले ही खत्म कर दूंगा सो दैट आपको बड़े सब्जेक्ट्स के साथ दिक्कत ना आए, ठीक है। मॉडर्न के बाद आई टेक इकोनॉमिक्स सो दैट आपको इकोनॉमिक्स में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। उसमें ये की चीज है कि एट यू हैव टू अटेंड ईच क्लास बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास बिकॉज लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इज देयर। अगर आप एक क्लास नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक नहीं पढ़ा चलो अगले टॉपिक में बैठ जाते, ऐसा नहीं होता, उसमें फ्लो चाहिए होता है उसमें, है ना। सो व्हाट माय प्लान इज आई विल कवर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स विद यू, लाइक मेजर सब्जेक्ट्स विद यू पहले। उसके बाद हम एंशिएंट मीडिया में मेरे को पता है पढ़ाना है, मेरे को ही पढ़ाना है, तो आई कैन स्विच इट अराउंड सो दैट आपको जो बड़े बड़े हैं आपको पहले ही रिवाइज हो जाए, सो दैट बाय द प्रिपेयरिंग आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू क्लियर। तो जब आपके सर ने मुझे बुलाया था, लाइक ही आस्क्ड मी टू टीच, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन he wanted me to teach you guys. Like we contacted long back, but due to my time constraints, I was not able to commit to it. But when he wanted his maximum number of students to have a clear idea about examination, कि कैसे पेपर निकालना है. So that time I agreed. कि हाँ, I'll teach for you guys. So, but the thing is, मैं सारे मेजर सब्जेक्ट सबके पहले करवा दूंगा, ठीक है। बस समीर कह रहा है लकी है, ऐसा कुछ नहीं समीर। एक्चुअली I take a lot of classes in Delhi only. And I go to Bangalore, I go to Kerala. केरला तो इसलिए जाता हूँ कि क्लासेस लेने के बाद कुछ टाइम अपने होम टाउन पे स्पेंड करने को मिलता है। I go to Kerala, I go to different places. But this was the first time I have already got offers from people from northeastern part of India, not from Sikkim, but मैंने कभी commit नहीं करा क्योंकि because I had that time constraints, but this is the first time. तो इसलिए मेरी क्लास बहुत लेट होती है, इसलिए मेरी क्लास संडे सैटरडे होती है, कि बाकी दिन मेरे बहुत सारे क्लासेस है तो संडे सैटरडे होता है। तो मैं आपको मेजर सब्जेक्ट सारे पहले करवा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, एग्जाम आप एकदम अच्छे से पेपर दे पाओ, ठीक है। और फिर हम लास्ट में करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस में आपको हम क्विज की तरह करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे, सो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हाँ, राइट डाउन लॉर्ड लिटन 1876 to 1880। लॉर्ड लिटन 1876 to 1880। एटीन सेवेंटी एट he passed the Arms Act. That is common people cannot bear the arms. That is common people cannot bear the arms without permission. Common people cannot bear the arms without permission. In 1878, he passed Vernacular Press Act. In 1878, he passed Vernacular Press Act. Which curbed the freedom of press. To prevent vernacular press or regional press.
from criticizing the British policy to prevent or regional press from criticizing the British policy. ठीक है. So 1878 में कौन सा एक्ट पास हुआ? 1878 में कौन सा एक्ट पास हुआ? Arms Act. और 1878 में जो सेकंड एक्ट पास हुआ था वो कौन सा एक्ट था? Vernacular Act. Vernacular Press Act. Vernacular Press Act. Now I hope you are clear with both this act. ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ. वर्निकुलर प्रेस एक्ट, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूपीएससी भी बहुत बार पूछता है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है. वर्निकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पर 2 न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे भारत में. नहीं, एक न्यूज़पेपर का नाम बताओ. कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश होता था वर्निकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पर? विच वाज द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्निकुलर प्रेस एक्ट? बताओ. Which was a newspaper which was published during the time of Vernacular Press Act? बताओ. Any idea? Any idea which was a newspaper that was published during the time of Vernacular Press Act? Kesari. The newspaper's name is Amrit Bazar Patrika. The name of the newspaper is Amrit Bazar Patrika. This was a newspaper published during the time of Vernacular Press Act. This newspaper was published by 2 persons, Sushil Kumar Ghosh, yeah, you can write SS Ghosh, SS Kumar Ghosh, SS Kumar Ghosh, and एक और व्यक्ति थे, his name is Motilal Ghosh. These were the 2 persons who were behind this newspaper, the man behind this newspaper. So write down, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर्स में, तो write down. 2 newspapers were published during this time. 2 newspapers were published during this time. Number one. अमृत बाजार पत्रिका. अमृत बाजार पत्रिका. It was published by S.S. Kumar Ghosh. It was published by S.S. Kumar Ghosh and Motilal Ghosh. S.S. Kumar Ghosh and Motilal Ghosh. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था इस टाइम पे जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, जो एस कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने पब्लिश किया था. क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर. Yes, sir. ठीक है. यू वेरी वेल नो व्हाट इज वर्निकुलर प्रेस एक्ट, यू वेरी वेल नो व्हाट इज आर्म्स एक्ट. ठीक है. आर्म्स एक्ट के मतलब कॉमन मैन ऑफ इंडिया कैन नॉट कैरी आर्म्स. कॉमन मैन कैन नॉट carry arms without permission. Vernacular press मतलब regional newspaper cannot criticize और vernacular newspapers cannot criticize Britishers. ठीक है. और ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, who is the publishers of अमृत बाजार पत्रिका? Who is the publisher of अमृत बाजार पत्रिका? SS कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष. हाँ. अब लिट्टन ने एक और चीज क्या किया था. लिट्टन ने बोला, आज आप जो एग्जाम यूपीएससी एग्जाम देते हो उसके लिए आपको पता नहीं, इट इज कॉल्ड एज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आज इसका मिनिमम एज टू गिव एग्जामिनेशन कितना है? आज के टाइम पे मिनिमम एज कितना है? 21 है. अनलेस यू टर्न 21 यू कैन नॉट गिव दिस एग्जामिनेशन. राइट और रॉन्ग? राइट सर. बट लिट्टन ने बोला कि भाई मैक्सिमम एज टू क्लियर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज 19. 19 से पहले आपको निकालना ही निकालना है. इससे पहले आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और 19 से पहले आपको एग्जाम निकालना है. सो ही रिड्यूस्ड द मैक्सिमम एज ऑफ द सिविल सर्विस. समझ रहे हो कि कितना अत्याचार किया इन्होंने यूपीएससी के बच्चों के ऊपर. राइट ऑफ. आज यूपीएससी ने अगर ऑर्डर निकाल दिया मैक्सिमम एज टू क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज 19, आधा दिल्ली खाली हो जाएगा.
Sir, मैंने बोल दिया कि एक ही न्यूज़पेपर लिखो समीर, मैंने अभी बोला था कि एक ही लिखो। हाँ बोलो समीर, बोलो बोलो सर, किसने बोला? no sir, same question. 2 newspapers. What was the second word? हाँ मैंने बोल तो दिया था, एक लिख लो बस। He reduced the maximum age. He reduced the maximum age to clear civil service examination. He reduced the maximum age to clear civil service examination from 21 to 19. From 21 to 19. So was it the maximum age or minimum, sir? मैक्सिमम मतलब 19 साल से पहले आपको क्लियर करना है। पहले 21 ईयर्स था, मैक्स आज के टाइम पे तो मिनिमम 21 है। ठीक है, मतलब एनी कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग हैज टू क्लियर द एग्जामिनेशन बिफोर 19 ईयर्स ऑफ एज। सोचो तुम्हारा क्या होता, समझ रहे हो? राइट डाउन। अगला पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग लिटन्स टाइम Queen Victoria got the title of Kesre Hind. Queen Victoria got the title of Kesre Hind. क्या मिला उनको टाइटल? कौन सा टाइटल मिला? केसरे हिंद का टाइटल। यस, शी गॉट द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। मतलब एक टाइटल है, मतलब देखो हमारे देश के लोगों को दिया नहीं, उनके देश के लोगों को हमारा टाइटल दे दिया। क्या ही देश चल रहा है यहाँ पे, टोटल अत्याचार इज गोइंग ऑन। समझ रहे हो क्या क्या चल रहा है? ठीक है। हाँ, इनके टाइम पे एक और चीज हुआ कि एक आपने देखा होगा ना, दिल्ली दरबार के बारे में सुना है? दिल्ली दरबार जो जिसमें वाइस रॉय खड़े होते हैं, ठीक है, वाइस रॉय खड़े होते हैं, इंडिया के लोग मतलब वाइस रॉय इज ऑन स्टेज, ठीक है, एंड बहुत सारे भारत के लोग खड़े होते हैं और वो प्रोक्लेमेशन पढ़ते हैं, मैं आज आपके सामने क्वीन ऑफ विक्टोरिया का दिया हुआ मैसेज का ऐलान करने जा रहा हूं, आज से मैं आपका टैक्स बढ़ाने जा रहा हूं। तो ऐसे करके जो दिल्ली दरबार है, मतलब द वाइस रॉय विल रीड द मैसेज फ्रॉम द क्वीन, ठीक है, दैट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन। जैसे ये हमारे जगह पर आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और उनका मैसेज पढ़ के हमें सुना रहे हैं, ठीक है, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट दिल्ली दरबार इस टाइम पर हुआ था, दैट वाज इन held in 1877। ये पूछा जाता है, राइट डाउन। द फर्स्ट दिल्ली दरबार was held during this time. The first Delhi Darbar was held during this time. And Lord Lytton was the viceroy. 1877 में, 1877 में, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है लिटन के टाइम पे? लिटन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लिटन बहुत बेकार आदमी थे, ठीक है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या क्या पढ़ा है? Arms Act. आर्म्स एक्ट, ठीक है, कब हुआ था? 1878. बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट वन, Vernacular Press Act. वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878. वेरी गुड, ठीक है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878। और क्या हुआ था? Civil Service Examination. And the age was reduced from 21 to सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मैक्सिमम एज 19 कर दिया था, ठीक है। और and the title of Kesari Hind was given to केसरे हिंद का टाइटल दिया था किसको? Queen Victoria. सबने केसरे हिंद का स्पेलिंग ऐसे ही लिखा ना,
बहुत लोगों ने गलत लिखा है। शिमला भी कट कर दिया, दिख रहा है मुझे यहाँ से। शिमला स्पेलिंग गलत लिखा था ना? No, sir. झूठ बोल लो तुम। सोनल ने भी गलत लिखा है। सोनल गलत लिखा था ना केसरी हिंद का स्पेलिंग? Yes, sir. हरी ने भी गलत लिखा है। हरी, यस और नो? हरी गलत लिखा है ना? और एनजे ने भी गलत लिखा है। अब एनजे अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं मैं बच गई, बट इसने भी गलत लिखा है। यस और नो? Yes, sir. अब उज्जवल कह रहा है मैं बच गया। उज्जवल ने भी गलत लिखा है। उज्जवल गलत लिखा है सही लिखा है? गलत लिखा है ना? उज्जवल कह रहा है छोटा सा तो गलती हुआ है ना? उज्जवल कहाँ गए? नहीं है क्या? सही। हाँ, गलत लिखा है। यस सर। वेरी गुड। ओंग मुला ने भी गलत लिखा है केसरी इनका स्पेलिंग, KESAR ना। है ना? छोटा सा गलती। ओंग मुला ने भी गलत लिखा ना? अब शी वोंट आंसर। यस, देखो मैं तुम्हें कितना अच्छे से पहचानता हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो कि वहां पे कैमरा लगा है, मुझे यहाँ सब दिखता है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं और लोगों की बेइज्जती नहीं करूँ। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट पास हो गया। ठीक है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का पास हो गया। सिविल सर्विस का एज 19 कर दिया। केसरे हिंद का टाइटल दिया क्वीन को, क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया मैडम को टाइटल दिया केसरे हिंद का। ठीक है, गांधी जी को भी मिला था बाद में, वो बाद में बात करेंगे। गांधी भाई को भी टाइटल दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ, फर्स्ट दिल्ली दरबार। ठीक है, कब हुआ था? 1877 में। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके टाइम की बात। मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ, टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेक्स्ट 2 दिल्ली दरबार कब हुए थे? लिख लो, एक ब्रैकेट बना के जस्ट फॉर योर रेफरेंस लिख लो। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877, सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 एंड थर्ड दिल्ली दरबार 1911। सो फर्स्ट दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877, सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 एंड थर्ड दिल्ली दरबार 1911। ये याद रखना। ये देखो, ये बस आपको याद रखने के लिए कि पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार का ऑर्डर अरेंज करो। दिल्ली एक्सप्लेन द दिल्ली दरबार वंस मोर। हाँ मैं बताता हूँ, दिल्ली दरबार क्या है, कुछ नहीं है कि मतलब देखो दरबार का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड वहां से वाइस रॉय और उनके लोग क्वीन के द्वारा दिए गए मैसेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीटिंग है, इट्स अ मीटिंग विद द पीपल एंड फ्रॉम देयर ही इज रीडिंग आउट द मैसेज प्रोक्लेम्ड बाय द क्वीन। ठीक है, समझ में आ गया समीर को? फॉर एग्जाम्पल आप वाइस रॉय हैं और आपको क्वीन ने मैसेज भेजा, आप उस क्वीन के मैसेज को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद दरबार भी हुआ है, जब दैट मीन्स वो मैसेज इलाहाबाद से रीड करा गया। ठीक है समीर? ओके सर। ठीक है, देखो एक पॉइंट और लिख लो, ये लिट्टन के टाइम पर ही हुआ था। इन 1878 in 1878 there was a famine in India. In 1878 there was a famine in India, स्पेशली इन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, भारत का जो सेंट्रल इंडिया है, इस एरिया में, स्पेशली इन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब। ठीक है, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, बॉम्बे, मैड्रास, पंजाब, बॉम्बे, मैड्रास,
ठीक है, इस टाइम पे पूरे देश में इस एरिया में सेंट्रल इंडिया, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ सब भारत में एक फैमाइन हुआ था। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इस फैमाइन को के बारे में स्टडी करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाया था लॉर्ड लिटन ने। उस कमीशन का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या आएगा, लिटन के टाइम पे 1878 में देयर वाज फैमाइन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेसिकली इट वाज देयर इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब रीजन, ठीक है, पंजाब रीजन, बॉम्बे रीजन, ठीक है, मद्रास रीजन, अलग अलग जगह पे देयर वाज अ फैमाइन। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द मैटर ऑफ फैमाइन एंड टू सॉल्व, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अ कमीशन वाज सेट अप। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन? बताओ बताओ, एनी आइडिया? प्लीज राइट नाउ. Ujjwal says that Richard Starkey. Richard Starkey was the chairman of the commission. The name of the commission was Starkey Commission. ठीक है, राइट डाउन। गूगल किया है ना? उज्जवल कितना बड़ा चीटर है, अब बोलेगा नहीं मैंने पढ़ा है। नहीं करा, चलो ठीक है, मैंने विश्वास कर लिया। ठीक है, सो राइट डाउन, इन ऑर्डर टू स्टडी द इश्यू ऑफ फैमाइन, so in order to study the issue of famine, a commission was set up. In order to study the issue of famine, a commission was set up called as Starkey Commission. Was called as Starkey Commission. Strachey. Strachey. Under the chairmanship of Sir Richard Starkey. Sir Richard Starkey. ठीक है, सो लिटन के टाइम पर क्या क्या हुआ है? कौन, हु विल टेल मी? हु विल टेल मी लिटन के टाइम पर क्या क्या हुआ है? जल्दी बताओ। Sir, first the Arms Act. ठीक है, you have to explain that act as well. So according to the Arms Act, ordinary people cannot hold arms unless and until they are granted a permit to hold a arm. Okay. And the second one we learned about is the Vernacular Press Act in the 1878. So according to this act, the regional press cannot criticize the British rule in India. And the maximum age in the civil service examination was reduced from 21 to 19. And the title of Kesari Hind was given to Queen Victoria by Lord Lytton. And we learned about the first Darbar during his tenure that happened in 1877. And lastly, we talked about famine, which was prevalent in India during that time. And a commission was set up under Sir Richard Starkey to study about this famine. The commission's name was Starkey Commission. एक और बार बताओ, जो जो पॉइंट्स बताए थे, जल्दी जल्दी एक और बार बताओ। जल्दी जल्दी सर। First, do I need to explain, sir? हाँ, बस बताओ, जहां जहां बोलना होगा मैं बोलूंगा, जल्दी बताना। You have 30 seconds. Okay, sir. In the year 1878, two acts were passed: Arms Act, Vernacular Act, and the age of the civil service examination was reduced from 21 to 19. The title of Kesari Hind was given to Queen Victoria by Lord Lytton, and there was a famine during his tenure, and there was a commission set up to study about the famine, which is known as the Starkey Commission under Richard Starkey. And Lord Lytton is also known as the Viceroy of Atrocities. ये तो मैंने नहीं बोला। that is what you have missed the newspaper's name, and you have also missed the Delhi Darbar in the second time. First time you said about Delhi Darbar, second time you haven't said. Which was a newspaper? I'm not able to recall, sir. बेटा घुमाना नहीं है, आंसर देना है। दिल्ली दरबार कब हुआ था?
1911. वो तो थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877. ओके ठीक है. द न्यूज़पेपर्स नेम इज अमृत बाजार पत्रिका. ठीक है. सो वी आर डन विद 2 वाइसरॉयज. ठीक है. द नेक्स्ट वाइसरॉय इज लॉर्ड रिपन. क्या नाम है इनका? लॉर्ड रिपन. एनजे, यू नो लॉर्ड रिपन? No, sir. You have done graduation in which field? Sir, pharmacy. Pharmacy. Okay. So अगर आप किसी को मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनजे से पूछ सकते हैं. ठीक है. एनजे दे पाओगे? Sir, I'll try. So once you learn, just out of curiosity, once you learned ये क्या लिखा है? उज्जवल ने सर, द फैमिन कमीशन वाज द फर्स्ट फैमिन कमीशन. हाँ सही बात है, राइट, इट वाज द फर्स्ट फैमिन कमीशन. एनजे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लाइक आप फार्मेसी सीखते हो, लाइक योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, राइट? Yes, sir. योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, राइट? हेलो. Yes. हाँ, तो आफ्टर ग्रेजुएशन इन फार्मेसी व्हाट यू गाइस डू? क्या करते हैं उसके बाद? So there are various job opportunities in government sector also, or we can like open a medicine store also if you want to. Like, So have you opened a medicine store? Sir, like I've lent my this thing. What do you License call ना? it? License, yes, sir. मेरे को पता था. मतलब you have given like asked somebody else to open a medicine store and on your name that person has, on your license that person has opened the medicine store, right? Yes, sir. अगर उसने कोई गलत मेडिसिन दे दिया तो अंदर कौन जाएगा? Sir, me. बेटा, Sir, but मेरे को like यही सुनना था. already there. क्या कह रहे हैं? Sir, there's a pharmacist also. There is a pharmacist also. Then why the person hasn't taken license on his name? Sir, I don't know. बेटा तुम ना रहने दो. पूरा तुम यूपीएससी इंटरव्यू में ये सब कुछ बोलना मत, ठीक है? अगर यूपीएससी इफ यू आर गिविंग, लाइक एनीबॉडी इज गिविंग, सो डोंट टेल ऑल दिस थिंग्स. घुमा देंगे तुम्हें. ऐसा लगेगा कि पैर पकड़ के दे आर हिटिंग ऑन द वॉल्स एंड फाइनली दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो. सो ये सब बोलना मत कि. और मेरे को पता था कि फार्मासिस्ट क्या काम करता है, बट आई वांटेड टू हियर दिस फ्रॉम यू कि तुमने लाइसेंस लैंड किया. दिल्ली में भी बहुत कॉमनली होता है. होता है. चलो कोई बात नहीं. आज एनजे पकड़ी गई. चिमला भी करती है ऐसे काम, बताओ. इसको माइग्रेन है आज मुझे. तुमने करप्शन नहीं किया, बताओ. सर अभी नहीं हुआ. नहीं हुआ? करिए अभी नहीं हुआ, कभी करना है वाकई. So what you have done in your graduation? Sociology. But अच्छा, sociology. And after doing sociology, what you can do? सर वो मैंने छोड़ दिया ऐसे. Then I studied mycology. मेरे पापा के पास बहुत पैसा था तो मैंने ऐसे ही सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर लिया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको, है ना? Yes, sir. है ना? करी. हाँ, yes. तो you have done graduation in sociology and you are growing mushroom, right? Yes, sir. So I left it completely. Then I studied different. And you are claiming that mushroom can clear cancer, right? Not claiming it. I already got a study proof. Study proof. So like how like on what authorization did you conduct that study? So I don't conduct the study. There is a university in Assam called Sniper University. So all the tests, Sniper, NIPER. Okay. So they run all the tests for me. So they run all the tests. But how did you come to know कि भाई mushroom से cancer clear हो सकता है? So it's not because I came to know. It's because there is already a study on it. There is an international paper. There is an international paper on it. So how did you come to know that there is an international paper on it? So first, I heard about this mushroom because it's very much prevalent over here in Sikkim. Okay. So I just wanted to know more about it. Then I got in contact with the mycologists of Israel and Vietnam. So spoke more with them. Then I went to Vietnam,
studied in Kempton University under Michael Springs. And then अच्छा, you went to Vietnam? हाँ जी. यार तुम इतने बड़े आदमी और इतने बड़े आदमी को मैं पढ़ा रहा, मुझे नहीं पता था. चलो, I'll give you an offer. ठीक है, I'll give you an offer. If in मतलब ऑफर क्या है, तुम्हें अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना. If you require a bioinformatician, you require bioinformatician, no? Okay. You मतलब for conducting your study and compilation of your studies, you require bioinformatician, right? Yes, sir, for all the things. All the things you require bioinformatician. Then you call me, I'll provide you a bioinformatician. Okay. Like my wife has done PhD in bioinformatics, and she is working like now we are having a baby of very small, so she has taken a break for this duration, and she is working as a senior scientist bioinformatics in she was working in ILBS, Liver and Binary Sciences Hospital, and she was doing research on liver. So she does all the compilation of the data. If you require any kind of help for the compilation, so she can help you out with that. Sure, sir. Thank you so much. ठीक है, तो देखो ऐसे ही तो जानते हैं. चलो अब हम आते हैं, हम गरीब लोग रिपन में आते हैं. तुम लोग बड़ी बड़ी बातें तुम लोग करो, हम रिपन में आते हैं, फिर हम IAS बनेंगे. ठीक है समीर, आपने क्या किया है? क्या सर, कुछ नहीं करा, आप कुछ करवा दो. हैं सर बीटेक किया सर. बीटेक किया भाई, बीटेक के लोग ही, मैंने भी बीटेक किया था, बट फिर मुझे एहसास हुआ नहीं करना चाहिए था, फिर मैंने यूपीएससी करा. मतलब दुनिया में जो लोग बीटेक करते हैं उसका सबसे बेकार सर बीटेक ही देता है. कह रहा है कि मैंने भी बीटेक किया था मैकेनिकल, फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई नहीं करना चाहिए था. चलो फिर हम आते हैं लॉर्ड रिपन. हम समीर, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कितने बड़े लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं? एनजे वही सर है ना, कितने बड़े लोगों के बीच में पढ़ रहे. अब इसमें और भी बड़े लोग होंगे हमें जिनके बारे में जानकारी नहीं है, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में आई नो एवरीवन पर्सनली, उनकी फैमिली को जानता हूँ, है ना. बट हमारा देखो कितना उच्च विचार लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, Anyways, Lord Ripon was a viceroy from 1880 to 1884. तो 1881 में इन्होंने एक चीज किया था जो वो बहुत फेमस है. वो क्या है आपको पता होना चाहिए, इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन. 1881 में when Lord Ripon was the viceroy, इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज किया था. What was it? बताओ what was the thing? Any idea? This was the year when first official census of India was conducted. पहली बार भारत में official census conduct हुआ और जिसमें इंडिया का population था 25.4 करोड़. ठीक है, पहली बार भारत में लोगों का काउंट देखा गया. प्लीज राइट डाउन 1881. It was the year when first official census of India was conducted. It was the year when first official census of India was conducted. The population of India was estimated. The population of India was estimated to be 25.4 crore. The population of India was 25.4 crore. Right on the second point. ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना सबको कि 25.4 करोड़ पॉपुलेशन था, भारत का पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ. दिस इज क्लियर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Right on the second point.
In 1881, the first Factory Act was passed. In 1881, the first Factory Act was passed. Factory Act. देखो फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या है कि फैक्ट्रीज के नॉर्म्स और रूल्स क्या बनाने हैं, ठीक है. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास, ठीक है. ओके, सो राइट डाउन. दिस एक्ट मेजरली फोकस्ड ऑन चाइल्ड लेबर पे फोकस किया था, एंड लेबर इंस्ट्रक्टर इन फैक्ट्री. ठीक है, लेबर इंस्ट्रक्टर इन फैक्ट्री. तो मैं बहुत सिंपली आपको एक चीज समझाता हूं. तो 1881 में जो पहला चीज हुआ था, दैट वाज सेंसस ऑफ इंडिया वाज ब्रॉट इन. ठीक है, भारत का पहला सेंसस हुआ, ठीक है, ऑफिशियल सेंसस, एंड द पॉपुलेशन वाज 25.4 करोड़. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस वाइसरॉय के टाइम पे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कैलकुलेट हुआ था. इट वाज लॉर्ड रिपर. सेकेंड थिंग, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट का पास हुआ. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ. चाइल्ड लेबर एंड लेबर इंस्ट्रक्टर इन फैक्ट्री. ठीक है, लेबर इंस्ट्रक्टर इन फैक्ट्री, ठीक है, की बात हुई. ठीक है, बट क्या था कि people of India were not happy with this factory act. People were not at all happy with this factory act because they felt that ये इनको ऐसा लगता था कि फैक्ट्री एक्ट से उनको प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो लोग थे वो सोचते थे यहाँ पर पे थोड़ा बढ़ेगा, पे हाइक होगा, बट वो नहीं किया गया था. पे हाइक की बात नहीं करी थी और इन चीजों पे कोई भी बात नहीं करी थी. बट ही सेड कि चाइल्ड लेबर पे हम बात करेंगे और लेबर इंस्ट्रक्टर पे बात करेंगे. पे हाइक जो एक्चुअल लोगों की जरूरत थी उस पर कोई भी बात नहीं की गई थी. राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन. इट वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. It was a huge disappointment for Indians. It was a huge disappointment for Indians because they were expecting a pay hike. You were expecting a pay hike in this act. Which was not discussed. It was not discussed. Right now, दो चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा फैक्ट्री एक्ट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है. रिपन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. अभी आपको समझ में आएगा क्यों. It prohibited employment of children. Below 7 years. It prohibited employment of children below 7 years in factories. Below 7 years in factories. ठीक है, मतलब देखो इंडिया का सिचुएशन क्या था. ये बोला गया कि 7 साल से 7 इयर्स का कम बच्चा फैक्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकता. तो 7 इयर्स का कम का बच्चा फैक्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकता. ठीक है, एंड 7 to 12 इयर्स का बच्चा, लाइक 7 to 12 इयर्स का बच्चा फैक्ट्रीज में काम कर सकता है, बट उसका वर्किंग आवर 9 आवर्स होगा. 9 आवर्स होगा, जो कि आज नॉर्मल लोगों का टाइम है. प्लीज राइट डाउन. द वर्किंग आवर्स वाज फिक्स्ड एट 9 hours. Now, the working hours was fixed at 9 hours for children between 7 to 12. For children between 7 to 12. Working hours for women was fixed at 11 hours.
working hours was for women was fixed at 11 hours. ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं. तो रिपन ने जो लॉर्ड रिपन का जो पहला बात दैट इज 1880 से 1884 तक ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस वाइसरॉय के टाइम पर ऑफिशियल सेंसस हुआ. ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ, द सेंसस ऑफ इंडिया. ठीक है, 25.4 करोड़ इज द ऑफिशियल सेंसस. ठीक है, पॉपुलेशन था. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ. ठीक है, दिस वाज अ गुड थिंग दैट ही डिड कि भाई फैक्ट्री एक्ट बनाया, कुछ लीगलाइज करने की कोशिश करी. चाइल्ड लेबर पे उन्होंने बात करी उस फैक्ट्री एक्ट पे. एंड लेबर इंस्ट्रक्टर, एक सेफ्टी इंस्ट्रक्टर की, मतलब लोगों को फैक्ट्री में एक सेफ्टी इंस्ट्रक्टर की बात करी. But the problem was people were not happy with this factory act because they were expecting a pay hike in this act. एक pay hike की बात कर रहे थे and the pay hike हुआ नहीं actually. Pay hike इस factory act में हुआ नहीं. So as they were expecting this pay hike, but it did not actually happen. ठीक है. दूसरा बात था, फैक्ट्री एक्ट में क्या बोला कि भाई 7 साल से कम का बच्चा, kid below 7 years will not be allowed to work. A kid between 7 to 12 years will be working for 9 hours. ठीक है, एंड अ वीमेन कैन वर्क फॉर 11 आवर्स. तो उस टाइम पे भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत थी क्योंकि वर्किंग आवर्स का कोई टाइम लिमिट नहीं था. एंड फैक्ट्रीज में उस टाइम पे बहुत 7 इयर्स के कम के बच्चों को भी काम करवाया जाता था. ठीक है, और समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, अब 1882 में रिपन ने एक रेसोल्यूशन पास किया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1882 में रिपन पास द रेसोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आज हमारे देश में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज हैं, वो पहली बार रिपन के टाइम पे बना था. इसलिए लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो आज हमारे देश में, हमने 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था पॉलिटी में. तो वी रेड देयर इज यूनियन लेवल गवर्नमेंट, देयर इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम of Lord Ripon, and that's why the Lord Ripon is called as the father of local self-government. I hope it's absolutely clear. ठीक है, write down. In year 1882, Lord Ripon passed a resolution. Of local self-government. Lord Ripon passed a resolution of local self-government. And he was called as the father of local self-government. ठीक है, देखो, write down. In year 1882, next point, in year 1882, in order to improve the educational standard of India, Lord Ripon introduced a commission. Which was called as Hunter Commission. ठीक है, तो एक कमीशन बिठाया गया जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए अपने इनपुट्स देगा. एंड द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज हंटर एंड द नेम ऑफ द कमीशन वाज कॉल्ड एज हंटर कमीशन. ठीक है, हाँ, अभी एक बार हम रिपन को एक बार यहाँ पे हम अपने तरीके से लिखते हैं. ठीक है, और मेरे को बताना है कि आपको कितना समझ में आया. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड
रिपन, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन कब से कब तक वाइसरॉय थे? 1880 to 1884. 1880 to 1884 he was a viceroy of India. Very good. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लॉर्ड रिपन ने सबसे पहली चीज क्या करी थी? What was the first thing that he did? What was the first thing? Sorry, conducted officer census. क्या करा? Conduct officer census. ऑफिशियल सेंसस करा। गुड। कब हुआ था ये ऑफिशियल सेंसस? 1881 में। और पॉपुलेशन कितना था? 25.4 करोड़। वेरी करेक्ट, 25.4 करोड़। ठीक है, ठीक है, 25.4 करोड़। सेकंड पॉइंट क्या बोला? व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? सर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, अब इसमें दो मेजर जो चीज थी वो किसके बारे में बात कर रहा था? सर चाइल्ड लेबर और लेबर इंस्ट्रक्टर। चाइल्ड लेबर और लेबर इंस्ट्रक्टर, चाइल्ड लेबर और लेबर इंस्ट्रक्टर। इसमें भी अगर चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रहा है तो कौन से चीज में एम्फेसाइज किया गया था? सर एज ऑफ चाइल्ड सर 7 ईयर एंड बिलो शुड नॉट बी हायर्ड। एक मिनट, क्या बोला गया चाइल्ड लेबर और लेबर इंस्ट्रक्टर में? एज ऑफ चाइल्ड सर, एज ऑफ चाइल्ड 7 और बिलो कैन नॉट बी हायर्ड। एज ऑफ चाइल्ड 7 से कम के बच्चे हायर नहीं हो सकते। ठीक है, गुड। एंड चाइल्ड एज बिटवीन 7 to 11, 7 to 12, 7 to 11 years will work for 9 hours। 7 to 11 बोला है, 7 to 12 बोला है मैंने। 7 to 11, 7 to 12 12, 7 to 12 के लिए 9 आवर्स होगा और वीमेन के लिए 11 आवर्स होगा। ठीक है, ये बोला है मैंने। ठीक है, सो 7 के बीच का नीचे का बच्चा कम नहीं वर्क कर सकता। 7 to 12 के लिए 9 आवर्स और वीमेन्स के लिए 11 आवर्स। ठीक है सर। ठीक है, और क्या बोला? सर ही पास्ड अ रेजोल्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा गया था। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द विच टायर ऑफ गवर्नमेंट? थर्ड टायर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर उसके बाद क्या करा? सर भूल गया सर। एक एजुकेशन कमीशन बनाया एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ कमीशन? हंटर कमीशन सर। हंटर कमीशन। व्हाट इज योर नेम? सर सुदीप। वंस मोर। सुदीप सर, सुदीप छेत्री। Sudeep, very good. Sudeep, Education Commission was Hunter Commission. ठीक है? Which was the first famine commission of India? Famine commission? अभी थोड़ी देर पहले हमने famine commission पढ़ा था ना, नाम क्या था उसका? सर forgot sir। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट गई। Yes sir? I could not hear you, Sudeep. Sir, I forgot that sir। Starkey Commission. Starkey, yes। हाँ, ठीक है। गुड सुदीप, वेल डन। थैंक यू सर। सर ठीक है, हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिमिला भुटिया है। तो क्या करें? सर आपने पूछा ऊपर यू रिटन लेबर इंस्ट्रक्टर, सर कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? लेबर इंस्ट्रक्टर इज लेबर इंस्ट्रक्टर। लेबर इंस्ट्रक्टर ये फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर आप, अच्छा मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल कर दे सकता हूँ लेबर इंस्ट्रक्टर का। रुको, आपको मैं बताता हूँ, रुको। ये है, ठीक है, ये क्या है? चिमला है? डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ माय ड्राइंग। ठीक है, दिस इज मशरूम। और यहाँ फिर तुमने मशरूम क्यों बोला? बिकॉज़ इट कुड अलाइन विद मी। हाँ, इस कंपनी की सीईओ है चिमला, चिमला भूटिया। ठीक है, नाउ दिस सीईओ डज लॉट ऑफ टॉर्चर, ठीक है, ऑन लाइक ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड द वर्किंग कंडीशन इज हैजार्डियस। ठीक है, तो उसके लिए लोगों को, एम्प्लॉयज को एक सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करने के लिए देयर शुड बी अ लेबर इंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? कहां चली गई? No, sir. नहीं समझ में? अरे लेबर इंस्ट्रक्टर इज अ पर्सन हु एक्सप्लेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू द एम्प्लॉयज. Okay. So it is a person, or it's kind of a document that says the. No, it's a person. Okay. चिमला यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी मेरे को ये. Sir. Sir, you mean the concept of labor instructor was introduced by this Factory Act, sir? बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि लेबर इंस्ट्रक्टर इससे पहले नहीं होते थे. लेबर इंस्ट्रक्टर इससे पहले भी होते थे. ठीक है. अब इस एक्ट ने उसको लीगलाइज कर दिया कि आपको रखना ही रखना है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो कंपनीज थी, कुछ अच्छी कंपनीज थी, लेबर इंस्ट्रक्टर रखते थे. और बट जब कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि मनी माइंडेड कंपनीज थी, वो लेबर इंस्ट्रक्टर नहीं रखते थे. तो 1881 के फैक्ट्री एक्ट ने क्या करा? लीगलाइज कर दिया, भाई सबको लेबर इंस्ट्रक्टर रखना ही है. Getting So my it point? was mandatory, sir. हाँ, it became a mandatory aspect. Okay. ठीक है. अभी राइट डाउन वन मोर पॉइंट. सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना कि भाई इन्होंने ऑफिशियल सेंसस लेकर आए, फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, लेबर इंस्ट्रक्टर, चाइल्ड लेबर की बात करी. लॉर्ड रिपन ने एक और चीज, लॉर्ड रिपन ने एक और चीज किया था कि जो लॉर्ड लिटन ने जो भी गलत काम किया, ठीक है, जो भी गलत काम किया, जैसे आर्म्स एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वो सारा रिपन ने हटा दिया. ठीक है. लिटन में टाइम पे हमने पढ़ा ना कि भाई ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग. जैसे लॉर्ड लिटन ने ही ब्रॉट इन आर्म्स एक्ट. ठीक है, आर्म्स एक्ट, एंड ही ब्रॉट इन वर्निकुलर प्रेस एक्ट. तो इन सारी चीजों को रिपन जब आया, रिपन ने हटा दिया. रिपन सेड दैट ये सारी चीजें सोसाइटी के लिए जरूरत नहीं है. सो ही रिमूव्ड ऑल दोस एस्पेक्ट. इसलिए हिस्ट्री में ये कहा जाता है रिपन रिपेल्ड अवे ऑल द एक्ट्स ऑफ लिटन. रिपन रिपेल्ड अवे ऑल द एक्ट्स ऑफ लिटन. समझ में आ गया? Yes, sir. प्लीज राइट डाउन. रिपन repelled away all the negative acts. Ripon repelled away all the negative acts brought in by Lord Lytton, including Arms Act and Vernacular Press Act. Including Arms Act and Vernacular Press Act. ठीक है. अब देखो, हम लोगों ने इनकी अच्छाई तो पढ़ ली. ठीक है, अच्छाई तो पढ़ ली है. अच्छाई हमारे लिए क्या है, एक बार ध्यान से देखना. अब हम इसके एक एसेंशियल टॉपिक में जा रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो. ठीक है. लॉर्ड रिपन ने 1884 से 1880 से लेकर 1884 तक ही वॉज अ वाइसरॉय. सो इन्होंने सबसे पहली चीज क्या पास करी? ही पास द ऑफिशियल सेंसस. He passed the official census and 25.4 crore was the population. First Factory Act was passed. Major emphasis on the Factory Act was on child labor and labor instructor. But was it did people were happy with this Factory Act? No, sir. Why the people were not happy? Because they wanted the rise in their pay, which was not. They wanted hike in prices, which was not accepted in this was not discussed in this Factory Act. जो चाइल्ड का एज है 7 ईयर्स से कम, वो तो बिल्कुल वर्क नहीं कर सकते. 7 to 12 ईयर्स के बच्चे 9 आवर्स वर्क कर सकते हैं, एंड विमेन्स 11 आवर्स वर्क कर सकती है. ही वाज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. एजुकेशन के लिए उन्होंने हंटर कमीशन को एस्टैब्लिश करा. ठीक है. एंड जितने भी लिटन ने जो गलत एक्ट लेकर आए थे, वो रिपन ने उसको रिपेल कर दिया. बट इसके बाद इनके टाइम पे कंट्रोवर्सी हुआ. किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुआ. द नेम ऑफ द कंट्रोवर्सी इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. क्या कंट्रोवर्सी का नाम था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. ठीक है. व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. सो राइट डाउन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. Ilbert Bill controversy.
ठीक है, written. Can you hear my voice? Yes, sir. Written. हाँ, अभी कंट्रोवर्सी क्या है, ठीक है, ये एक क्या कहते हैं, एक अच्छी चीज थी जो करने की कोशिश करी गई, बट एक्चुअली हुआ क्या, ये थोड़ा सा बुरा हो गया, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा राइट नाउ कि क्या है एग्जैक्टली। मैं पहले पूरा लिखवा देता हूं, देन वी विल डिस्कस इट। राइट नाउ, इलबर्ट was a law member. Ilbert was a law member in Viceroy's Executive Council. Ilbert was a law member in Viceroy's Executive Council. In order to maintain a judicial uniformity, he introduced a bill after introduction of the bill, the Indian judges could take the trial of criminal cases of Europeans. Indian judges could take the trial of criminal cases of Europeans. It resulted in huge discomfort among the Britishers. There was a big revolt from the Britishers. Against the Viceroy and the law member. This revolt is called as White Revolt. White Revolt. At the same time, Ilbert and Ripon received a great support from Indian population. But in order to handle the situation, Ripon introduced a new system called as jury system. As per this system, majority of judges were Europeans. Which resulted in an agitation among the British population. देखो, इलबर्ट अभी खत्म नहीं, हाँ ये तो खत्म हो गया, ध्यान से सुनो। इलबर्ट बिल हुआ क्या,
इल्बर्ट कौन थे? इल्बर्ट एक मेंबर थे वाइस रॉय के काउंसिल में, वाइस रॉय के काउंसिल में। अगर आपको याद होगा आज के क्लास में हमने 1861 में एक एक्ट पढ़ा था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। यू रिमेंबर इट? बताओ। यस सर। और इसमें हम लोग बोला था कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्रिएट करा था। पोर्टफोलियो तो मतलब डिपार्टमेंट बना दिए गए थे, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे। तो उसमें से लॉ जो था, लॉ डिपार्टमेंट के हेड थे इल्बर्ट। सो ही वाज अ लॉ मेंबर इन वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता था। तो लॉ डिपार्टमेंट का हेड था इल्बर्ट। इल्बर्ट वाज द हेड ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट। नाउ ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम। इन्होंने कहा कि भाई अभी तक क्या होता था इंडिया में, यूरोपियंस के केसेस यूरोपियन जजेस सुनते थे। यूरोपियन जजेस सुनते थे और इंडियन के केसेस ज्यादातर यूरोपियंस भी सुनते थे और इंडियंस भी सुनते थे। इन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यूरोपियंस के केसेस जो भारत में हो रहे हैं वो खाली यूरोपियन जजेस सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। ठीक है, इंडियन जजेस भी उसको सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन एक्स इज फ्रॉम यूरोपियन और अ ब्रिटिश पर्सन, तो उसके केसेस खाली यूरोपियन जजेस सुनते थे। अब इसने बोला ऐसा नहीं होगा कि इंडियन जजेस भी सुनेंगे, और इंडियन पॉपुलेशन इससे बहुत खुश हो गया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मतलब इट्स वेरी सिंपल कि पहले सिस्टम ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ पर्सन फ्रॉम यूरोप या ब्रिटिशर, ठीक है, ब्रिटिशर है, तो उसने कोई क्राइम किया है तो उसका ट्रायल जो होगा वो यूरोपियन सुनेगा। इल्बर्ट वांटेड कि खाली यूरोपियन नहीं सुनेगा, इंडियंस भी सुन सकते हैं। क्यों? जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी के तहत। एक देयर शुड बी जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी। अब क्या, यूरोपियंस डर गए कि भाई हमारे केसेस अगर इंडियन सुनेंगे तो वो हमें अच्छा पनिशमेंट दे सकते हैं, अपने हिसाब से पनिशमेंट देंगे। पहले यूरोपियन जजेस होते थे, उनको छोड़ देते थे। तो यूरोप के लोगों ने और मतलब इन लोगों ने और ब्रिटिशर्स ने, उधर के लोगों ने इसको रिवोल्ट करा कि बोला नहीं, इल्बर्ट और रिपन के खिलाफ रिवोल्ट करा, जिस रिवोल्ट को हिस्ट्री में व्हाइट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हाइट पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर सिस्टम। रिपन और इल्बर्ट के पीछे उन्होंने रिवोल्ट करा। ठीक है, बहुत रिवोल्ट हुआ। अब क्या हुआ? अगला पॉइंट क्या हुआ? अगला पॉइंट ये हुआ कि जो इंडियंस हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई रिपन और इल्बर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे कि इन्होंने तो कोई गलत थोड़ी किया है, अच्छा काम किया, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ? एक तरफ ब्रिटिशर्स, ये किसके खिलाफ हो गए? रिपन। और किसके खिलाफ हो गए? इल्बर्ट के खिलाफ। यहां से इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडियंस। कौन कर रहा है इनको सपोर्ट? इंडियंस। अब भाई ये दोनों बीच में फंस गए। रिपन ने बोला कोई बात नहीं, मैं एक नया सिस्टम क्रिएट करता हूं, जूरी सिस्टम, जिसमें बहुत सारे जजेस होंगे। अब जूरी सिस्टम में जजेस बहुत सारे होंगे, आपका केस किसी के पास भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जूरी सिस्टम में 10 जजेस होंगे तो आपका केस किसी के पास भी जा सकता है। ठीक है, बट इन्होंने क्या करा? जूरी सिस्टम केस तो क्रिएट कर लिया, बट उसमें ज्यादातर जज को यूरोपियंस रखा। तो 99% ऑफ केसेस यूरोप का यूरोपियंस के पास जाता था। तो ये क्या हुआ? इंडियंस को एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल आया कि भाई ये तो हमें धोखा दे रहे हैं, इनके साथ हम मिलकर काम नहीं कर सकते। और ये सारी फीलिंग्स की वजह से जब इंडियंस यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गए, हमारे अंदर ना क्या हो गया, एक नेशनलिज्म जाग गया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हम तो बदला लेंगे। ठीक है, वो नेशनलिज्म एक रीजन बना आगे जाके इंडियन नेशनल मूवमेंट। समझ में आ गया? इल्बर्ट-विल कंट्रोवर्सी क्या है? You understood what is Hilbertville controversy? Yes, sir. Sir, the last part, jury system, sir. Will you repeat, please? जूरी सिस्टम कुछ नहीं होता। जूरी सिस्टम में बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है, और रैंडमली आपके केसेस उस सिस्टम में अलॉट होता है। ऐसा नहीं होता कि ये यूरोपियंस का यूरोपियंस लेगा, रैंडमली अलॉट होता है कि उसमें से किसी भी जजेस के पास आपका केस जा सकता है। तो इल्बर्ट ने क्या बोला, भाई मैं एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊंगा जिसमें आपके केसेस रैंडमली इट कैन रीच एनी ऑफ द जजेस इन द जूरी सिस्टम। बट क्या है,
ये तो इंडियन लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, क्योंकि उस जूरी सिस्टम में 99% लोग अगर यूरोपियंस है तो दैट मीन्स यूरोपियन के जजेस तो यूरोप के वाले के पास ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहते हैं ना कि आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। ठीक है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। लाइक यूर केसेस विल ऑलवेज गो। तो जूरी सिस्टम एक्चुअली होना कैसे चाहिए, देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ इंडियंस, इक्वल नंबर ऑफ यूरोपियंस, तो फिर रैंडमली आपका केस उधर जाए। बट ऐसा नहीं था, उसने 99% को यूरोपियंस रखा और बोला मैं जूरी सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट की कंट्रोवर्सी क्या था? यस, राइट डाउन लास्ट 1-2 लाइंस, ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास बंद करते हैं। सर, हाँ, so you made us write that it caused an agitation in the British population. Like this, when they introduced majority of European judges, it caused agitation in British population or Indian population, sir? कहाँ लिखा है? You made us write British population. Indian population होना चाहिए, among Indian population, sorry, among Indian. As per the system, majority of judges were Europeans, which resulted in a feeling of agitation among Indian population. पहली बार जो एजिटेशन हुआ था ब्रिटिश पॉपुलेशन, दूसरी बार इंडियन पॉपुलेशन। राइट डाउन, after all these incidents, after all this incident, nationalism peaked in India, peaked in Indian population's heart. Which later resulted into Indian national movement. Which later resulted into Indian national movement. So we can say that during the time of Lytton, nationalism provoked in India. During the time of Lytton, nationalism provoked in India. सर लिटन रिपन से लिखो, मैं बता रहा हूं, मैंने सही लिखा है, nationalism provoked in India. But during the time of Ripon, India got soaked in nationalism. देखो, बहुत सिंपल है, इधर देखो, जब लिटन आर्म्स एक्ट लेकर आया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, ठीक है, आर्म्स एक्ट लेकर आया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, ऐसा कोई जब ये एक्ट लेकर आया, आर्म्स एक्ट लेकर आया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, जब लिटन ऐसे एक्ट्स लेकर आया, ठीक है, तो क्या हुआ, इंडियन पॉपुलेशन के माइंड में नेशनलिज्म हुआ तो सही, ठीक है, नेशनलिज्म जनरेट हुआ, यार ये हमारे साथ गलत कर रहा है, इंडियंस के साथ गलत कर रहा है, हमारे देश के साथ गलत कर रहा है, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बट जब रिपन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ, रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ, तो पूरा जो इंडिया है जिसके माइंड में नेशनलिज्म लिटन के टाइम पर आया था, वो पूरा इंडिया नेशनलिज्म के फीलिंग में डूब गया। इंडिया गॉट सोक्ड इन नेशनलिज्म एंड विच लेटर रिजल्टेड इन द Indian national movement against the British. You understood what is Ilbert Bill controversy? बताओ हाँ या ना? और ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि लिटन के एक्ट के वजह से नेशनलिज्म शुरुआत हुआ भारत के लोगों में, बट रिपन के गलत तरीके की वजह से पूरी तरह इंडिया डूब गया नेशनलिज्म में, जिसकी वजह से बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ। क्लियर और नॉट? यस ठीक है, हाँ प्लीज, किसी को डाउट है? Anybody having any doubt? चलो, कल हम नेक्स्ट वाइस रॉयस के बारे में करेंगे। कल मोस्टली 30 मिनट्स में हमारा वाइस रॉयस खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, देन वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक एंड देन वी विल मूव टू द नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.